A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter 7 of your geography book, and your chapter name is Our Country India. In our last class, we discussed about the political and administration of India, and after that, we talk about the physical divisions. Under that, we talk about the Himalayan mountains, and these Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges, that is, Great Himalayas, Middle Himalayas, or and Shivale. After that, we talked about northern Indian plains, which is the most fertile lands. Okay, and after that we talk about the great Indian desert, which has very dry, hot, and sandy texture, and very little vegetation. And after that we talk about the plateaus. Okay, plateaus are the tabular hills. Okay, so tabular hills, and it is known as peninsula because India is surrounded by water from three sides. That's why it is known as peninsula, and it is triangular in shape. There are so many ranges. Aravalli ranges, it is one of the oldest ranges in the world, which is in the northwest side of India. And after that, Vindhya, Satpuras, from where rivers like Narmada and Tapi flows and drain into the Arabian Sea. Okay, and if we talk about the southern part of India, southern west part, so there are the Western Ghats, or we also call Western Ghats as Shaidris. Okay, and in the west and in the east, there is Eastern Ghat, which is uneven and which is broken. Okay, so and plateau is very much rich in minerals like coal, iron ore, etc. So our next type of physical feature is coastal plains. First of all, what do you mean by the term coastal plain? Coastal plain क्या होता है? Just look at the map of India. ठीक है? Now just look at this area. Let me change the color of my pencil. Yes, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, जितना मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है, इवन थोड़ा सा ये वाला एरिया भी। ये वाला जो एरिया है, ये आप क्या देख रहे हो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाटर के पास है, समुद्र के पास का एरिया है। तो समुद्र के पास, सी के पास जो भी एरिया होता है, जो भी लैंड होती है, ठीक है, आसपास में, उस एरिया को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे मुंबई, केरला के कुछ पार्ट्स, गोवा, कर्नाटका के कुछ पार्ट्स, तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, चेन्नई, पूरी, विशाखापट्टनम, ओके, पुडुचेरी, और सो दीज आर सम ऑफ द कोस्टल एरियाज। ठीक है, इनको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं बिकॉज ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपके समुद्र के पास में। तो समुद्र के पास में जो भी एरिया होता है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। ओके, नाउ to the west of the Western Ghats and the east of the Eastern Ghats lies the coastal plains. हमने पढ़ा था, देखो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पढ़ा था। वेस्टर्न घाट कौन सा है? आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो आपका वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट का वेस्ट डायरेक्शन ये वाला है, वेस्ट डायरेक्शन। तो ये वाला जो एरिया है, इसको ये आपका कोस्टल एरिया। ईस्टर्न घाट ये है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट का जो ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपका कौन सा एरिया है? कोस्टल प्लेन्स का एरिया है। The western coastal plains are very narrow. The eastern coastal plains are much broader as compared to eastern coastal plains. जो western coastal plains हैं आपकी narrow है। narrow का मतलब होता है पतला, ठीक है, thin. So as compared to eastern coastal plains, western coastal plains are very narrow. There are a number of east flowing rivers.
ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करती है, उन रिवर्स को हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarbans delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. Now, first of all, what is delta? Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है आपकी, देखो महानदी, ये यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, ठीक है, ये नदी, और यहाँ से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, ड्रेन होती है मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा आप ये समझ लो जो बहुत, अब डेल्टा क्या है, अब ये नदी क्या होगी, महानदी जो है अब अपने अलग अलग पार्ट्स में ऐसे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डिवाइड हो जाएगी, और 4-5 लेयर्स में डिवाइड होके क्या है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी। तो ये जो अलग अलग सेपरेट हो जाती है और जाके समुद्र में मिलती है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो महानदी, ये गोदावरी भी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी, कृष्णा भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो वेस्ट से स्टार्ट होती है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है। कावेरी भी आपकी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। बट देखो सतपुरा रेंज वाली बात कर रहे थे हम, नर्मदा और तापी जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कहाँ पे जाके ड्रेन होती है, वो ड्रेन होती है आपके अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। बट महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ पे जाके ड्रेन हो रही है, वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो रही है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये देखो यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है आपकी, ठीक है, कुछ पार्ट्स ही उसके यहाँ पे भी मिल रहे हैं, यहाँ से आपकी गंगा रिवर आ रही है। अब ये दोनों जो रिवर्स हैं वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग ये वाली चीजें देख रहे हो, ये ऐसे अलग अलग 3-4 बने हुए हैं, इनकी डेल्टा है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। और इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, इस डेल्टा को हम बोलते हैं सुंदरबंस डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदरबंस डेल्टा। ओके, नाउ देखो द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र form the world's largest delta, the Sundarbans delta. The delta is triangular in shape. It is an area of land formed at the mouth of the river where rivers enter the sea. That point is called the mouth of the river. ठीक है, mouth of the river क्या होता है, जब rivers सी में एंटर करती है उस पॉइंट को हम माउथ ऑफ द सी बोलते हैं, और आप बोल सकते हो डेल्टा भी बोल सकते हो। ओके, सो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, और ये जो डेल्टा है इस डेल्टा का नाम सुंदरबंस डेल्टा है। इसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप है, और इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द एरिया। और इसी एरिया, डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ द लैंड formed at the mouth of the river, and where the rivers enter the sea, that point is called the mouth of the river. Now अब बात करते हैं हम आइलैंड्स की, ठीक है। इंडिया हैज 2 groups of islands, okay, also part of India. Lakshadweep Islands are located in Arabian Sea. These are coral islands located off the coast of Kerala. The Andaman and Nicobar Islands lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by tsunami in 2004? Find out through newspaper reports and by speaking to people in how in different ways people faced this challenge when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. Okay, अब देखो, अब इंडिया के ना 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स भी है। आइलैंड्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा लैंड एरिया जो चारों तरफ से which is surrounded by water from all the sides, it is known as island. Okay, we call it island, not Iceland, right? आइलैंड बोलते हैं। देखो इंडिया के अरेबियन सी में क्या है, ये देखो ये आपका इंडिया का मैप है, वेस्ट डायरेक्शन है। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड्स है, कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। और अंडमान एंड निकोबार
कहाँ पे है आपके बे ऑफ बंगाल ईस्ट की डायरेक्शन में है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। और 2004 में जो सुनामी आया था, सुनामी मतलब जब सी के अंडर अर्थक्वेक आता है तो उस वजह से जो टाइड्स जो होती है बहुत ज्यादा हैवी हाई टाइड्स होने लग जाती है, उसको हम सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी आने से जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था, मतलब पानी के अंदर धंस गया था, पानी के अंदर चला गया था, ठीक है। तो दीज आर द टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब देखो कोरल्स और पॉलिप्स क्या होते हैं, जो आपका ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। कौन से आइलैंड्स कोरल आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं कोरल आइलैंड्स हैं, ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड है, केरला के कोस्ट पे, केरला के कोस्ट पे मतलब दिस इज केरला, ये आपका यहाँ पे आपका केरला है, और इसके इधर पैरेलल में क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ये कोरल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड्स होते क्या है, कोरल्स, corals are skeletons of tiny marine animals called polyps. When the living polyps die, their skeleton are left. Other polyps grow on top of the hard skeleton, which grows higher and higher, thus forming the coral islands. ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक पॉलिप्स नाम का एक मरीन एनिमल होता है। मरीन एनिमल क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं या वाटर के अंदर ही उनकी लिविंग होती है, उनको हम मरीन एनिमल्स बोलते हैं। तो मरीन एनिमल एक छोटा सा मरीन एनिमल है जिसका नाम हम पॉलिप्स बोलते हैं, जिसको पॉलिप्स बोलते हैं। अब जब पॉलिप्स क्या होते हैं, पॉलिप्स सॉरी कोरल्स क्या होता है, पॉलिप्स के स्केलेटन्स होती है, स्केलेटन्स हड्डियां, ठीक है। पॉलिप्स की हड्डियां होती है, जब पॉलिप्स मर जाते हैं तो उनके स्केलेटन्स वहीं पे रह जाते हैं, और उनके ऊपर दूसरे पॉलिप्स क्या करते हैं, ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है। और उनके ऊपर जब ग्रो होते रहते हैं और फिर वो पॉलिप्स मर जाते हैं, फिर ग्रो होते हैं, फिर वो पॉलिप्स मर जाते हैं, तो उनके स्केलेटन्स वहीं पर रह जाते हैं ना। तो उस स्केलेटन से जो स्ट्रक्चर बनती है, ये देखो ये पिक्चर भी मेंशन है, ये वाली जो पिक्चर है ये कोरल्स की है, ठीक है। ये स्केलेटन्स हैं पॉलिप्स के, ठीक है, पॉलिप्स के स्केलेटन्स हैं, और स्केलेटन्स की वजह से एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं। तो हायर एंड हायर दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स, पॉलिप्स के जब स्केलेटन्स जो हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आने लग जाते हैं, ठीक है, उससे हम कौन से आइलैंड्स बनते हैं, कोरल आइलैंड्स बनते हैं। ओके, so class, this is all about this chapter. We completed this chapter. Please go through this chapter very carefully, and after that if you face any kind of doubt, you can ask me in my next class. Thank you so much for joining the class. Please take care of yourself. Bye.